any kind of formal training or presentation, any kind of thing. I just want to know, the intended audience, how many of us have ever used any version control system? Maybe we can raise our hands or maybe say yes. So we have only used a change set mechanism in Okay. Salesforce, and we haven't come across any other, Yeah. let's say, Git or Bitbucket things. But Okay. if anyone has, Abhishek has some hands-on on Bitbucket. He told me Okay. about. He has migrated some projects in PHP. Okay. So Abhishek, yes, am I right on that? Okay. So let's uh, it's understood that we all are we all are new to this new thing. Yes. So let me share my screen. Okay, let me know when my screen is visible. Yeah, visible. Yes. Yeah, it's visible. Okay, okay. So, the main agenda was to explore Bitbucket and to start using it. But before using Bitbucket, we should know basic commands and basic concepts of Git. So any version control system for now, like if it is Bitbucket or if it is anything else, GitHub, GitLab, or any so we under the hood it is using Git. So the Bitbucket training cannot be completed without having Git introduced. So the slide says about agenda. Now, this will cover an overview of what is version control system and some introduction to Git and the very key points or concepts that we have to understand Git's concepts before using any version control system. Then we will move to introduction to Bitbucket, setting up a practical, hands-on on setting up a Git repository. Sorry, not a Git repository, but Bitbucket repository. And then we will get to know like what all workflows are there for collaboration. And then we will look at what are the best practices. And then we will conclude it. So this was the agenda. Now, uh, like it is a formal definition. What is a version control system? But like I I leave it up to you in your free time. You can go on the definitions. Let us understand what is a version control system. See, if you are working without a version control system like Bitbucket, then we all see the challenges. For example, there is one file, code file, and for example, Abhishek is working on that. Now, I have got an assignment. In my assignment, I need to make some changes on the same file, which Abhishek is already working on. So, what will happen? He is doing his changes, and I am doing my changes. The moment I save, if I save after Abhishek, Abhishek's work will be overwritten by my work. This is the very basic and very pain-giving thing for every developer in this situation who does not use a version control. So version control is I make a change in a file and I save it. The you can say snapshot or the stage or whatever the code there is, it is saved as a version of that code file. Now, if somebody else works on the same file after me, then my work is already saved as a version. Now, his work will be also saved
along with his version, and this process goes on, and the history of version is being maintained in a version control system. क्लियर हो रहा है क्या इंटेंडेड ऑडियंस, द मेन डेवलपर्स? Yes, yes. Yeah, yeah. ठीक है, मतलब अपन लोग हिंदी में बात कर सकते हैं, ऐसा कुछ वो हाँ, और एकदम। प्रेजेंटेशन नहीं है, अपना मोटिव ये कि क्लियर होना चाहिए। ठीक है, So, तो Purushottam, can I ask one question here? या प्लीज कोमल। Just in a bit. So, जैसे आपने बताया कि वर्जन मेंटेन रहेगा if Abhishek has some changes and same file if I am going to change the same file, so it will be create what will it do? मतलब दो फाइल बना देगा फिर वर्जन 1 अभिषेक, वर्जन 2 कोमल, उसको मर्ज कैसे करेंगे? How will it merge? मतलब let's say मुझे प्रोडक्शन में दोनों कोड चलाने हैं और हाँ, अरे हम लोग अभी देखिए, अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि बेसिक डेफिनेशंस, मैंने अभी बोला ना कि डेफिनेशन तो बाद में आप लोग पढ़ या लीजिएगा। बाद में यस यस ये ना एक इंटरैक्टिव सेशन है, मेरी तरफ से इंटरेक्शन मैं चाहता हूँ, ठीक है? बोल के नहीं चला जाना है, तो हम लोग अभी देखेंगे प्रैक्टिकली सब कुछ, ठीक है? ओके दैट विल श्योर। तो थोड़ा मतलब 10-15 मिनट का एक बार समय दीजिए, फिर हम लोग करके देखेंगे। तो Sure. now this is introduction to Git. So by definition it is just a distributed version control, ठीक है? वर्जन कंट्रोल सिस्टम है ये। इसके की फीचर्स भी देखेंगे अभी हम, और हम क्या देखने वाले हैं कि इसका आर्किटेक्चर क्या है, ब्रांचिंग एंड मर्जिंग कैसे होती है इसमें, एंड ऑफ कोर्स स्पीडी एंड इफेक्टिव एफिशिएंसी इसकी रहेगी, क्योंकि हम लोगों को अलग अलग से बैकअप लेके नहीं रखना पड़ रहा है, सब कुछ वो अपने आप मेंटेन कर रहा है। तो ये गिट के बारे में ये बताया इस स्लाइड ने हमको, ठीक है? वी आर नॉट गिविंग एनी मच इंपॉर्टेंस टू द स्लाइड्स, वी विल गिव इंपॉर्टेंस टू द हैंड्स ऑन। ओके, सो ये बेसिकली 4 हमारे गिट के कॉन्सेप्ट्स हैं। पहला तो रिपॉजिटरी। तो रिपॉजिटरी का मतलब होता है कि हम लोग एक फोल्डर इमेजिन करते हैं कि एक फोल्डर है, उस फोल्डर में सारा कोड रखा हुआ है, और हम बोलते हैं वो मेन रिपॉजिटरी है हमारी, ठीक है? अब उसी के अंदर हम कमिट करते हैं कोड। कमिट करने का मतलब ये होता है कि जैसे अभिषेक ने काम किया और उसने एक तरह से कमिट किया, मतलब उसने स्टेज कर दिया कि मैंने अभी तक ये काम किया है, और वो जब वो कमिट करता है तो सिस्टम जो है, जो वर्जन कंट्रोल सिस्टम है, उसका एक स्नैपशॉट लेके रख लेता है कि अभिषेक के काम का ये वर्जन है, और उस वर्जन में ये काम हुआ था, कोड का ये स्टेज था। उसके बाद हम लोग देखेंगे ब्रांचेस का काम। ब्रांचेस मतलब जैसे एक तो मेन ब्रांच होती है जिसमें सारा प्रोडक्शन रेडी कोड रहता है। जब आपके पास कोई बोलता है आपको कि नया फीचर डेवलप करना है आपको, तो आप उसी ब्रांच में से, मेन ब्रांच में से एक अपनी सेपरेट ब्रांच बनाते हो और बोलते हो मैं अपनी वाले ब्रांच में फीचर डेवलप करूंगा और बाद में उसको मर्ज करूंगा अपने मेन ब्रांच में। या फिर दूसरे टाइप की ब्रांच होती है कोड फिक्स या हॉट फिक्स वाली ब्रांच। जैसे हमारे पास बग आते हैं तो हम बग को फिक्स करने के लिए अब सारा का सारा कोड तो हम वो नहीं करेंगे, तो हम क्या करते हैं, रेप्लिका बनाते हैं, एक नया ब्रांच बनाते हैं। उस नई ब्रांच में हमारा मेन ब्रांच का कोड की कॉपी आ जाती है, और उस कॉपीड कोड में यानी कि हमारी अपनी ब्रांच में हम चेंजेस करते हैं। फिर बाद में सेकंड वाला स्टेप अगेन कि भाई हम उसको कमिट करते हैं, यहां तक होता है। फिर लास्ट में एक पुल रिक्वेस्ट बनती है। पुल रिक्वेस्ट का मतलब ही ये होता है, जैसे भी आपने कहा कि मर्ज करते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट आता है और ये सब वो सब होता है। तो पुल रिक्वेस्ट जो है वो लास्ट स्टेप है हमारा। जो पुल रिक्वेस्ट आप जैसे आपने कोड कमिट किया, पुश किया, उसके बाद आप उसको एक अपनी उसकी पुल रिक्वेस्ट बनाते हो। तो अगर आपका कोई टेक्निकल लीड है या सीनियर टेक्निकल या जो भी है, मतलब ऊपर गाइडेंस देने वाला, वो आपके पुल रिक्वेस्ट को देखता है। उसमें हर एक फाइल का पुराना और नया वर्जन उसको दिखता है, और वो उसके बाद वो बोलता है कि अच्छा ये काम हुआ है, ये नहीं हुआ है, ये सही काम है, ये गलत काम है, उसको एक्सेप्ट करता है, अप्रूव करता है, या फिर उसको रिजेक्ट भी कर सकता है। एक तरह से कोड रिव्यू का पार्ट है ये। उसके बाद वो बोलता है मर्ज डन, एक बटन होता है, वो मर्ज का बटन दबाता है, वो मर्जिंग होती है। अब वहां पे अगर सेम लाइन ऑफ कोड के ऊपर आपने भी कुछ काम किया, लेकिन उस पे कोई दूसरा ही किसी
डेवलपर ने सेम लाइन पे अपना चेंज कर रखा था, देन सिस्टम विल शो यू सम मर्ज कॉन्फ्लिक्ट्स। और वो यूआई पे तुम बता सकते हो कि मतलब कौन से वाला चेंज रखना है, नया मेरे वाला चेंज रखना है या उसका रखना है, या फिर उसको भी रखना है, फिर नेक्स्ट लाइन पे मेरे वाला होना चाहिए, इस तरह से। तो मतलब देयर इज अ कंप्लीट मैकेनिज्म फॉर इट। ठीक है, अगली स्लाइड पे मूव कर सकते हैं। अभी यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हो तो हम पूछें। दिस कमिट ये थोड़ा मेरे को समझ में नहीं आया। अभी हम करेंगे एक्चुअली, ठीक है। ओके हाँ, अभी हम सब कुछ करके देखने वाले हैं। अभी आप बेशक, अब मुझे लगता है ये काफी वैसी स्लाइड है, बड़ी थियोरेटिकल, तो अगर आप इसको नहीं भी देखोगे, सीधा जंप कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, ये मैं एक काम करता हूँ, इफ यू ऑल एग्री, let me directly jump to the actual screen of Bitbucket, and then from there we will create a project, we'll create a repository, we add some one or two files there, we will then do some check-ins, some commits, then we will create a PR, and then we will see how it merges. चलेगा ऐसा? Yeah, that will work. ठीक है, Yes. ये पीपीटी तो इससे ज्यादा तो साहित्य इंटरनेट पे लिखा हुआ है। मैं आई डोंट लाइक इट, इट शुड बी रियलिस्टिक। ठीक है, तो अभी यही करते हैं हम लोग। यस एक मिनट। हाँ, हम लोग एक बनाते हैं नया, पहले तो एक प्रोजेक्ट बना लेते हैं। ठीक है, देखिए, आप जब भी किसी प्रोजेक्ट के लिए काम करते हैं, एक उसमें अलग अलग आपके सैंड बॉक्सेस या अलग अलग प्रोडक्शन इन्वायरमेंट हो सकते हैं एक ही प्रोजेक्ट के। तो बेटर ये है कि आप एक प्रोजेक्ट बनाओ पहले, सीधा रिपोजिटरी यहाँ रूट लेवल पे नहीं बनाना। ठीक है, एक नया प्रोजेक्ट बना लीजिए आप। अभी यहाँ पे हम इसको अ, अपना क्या नाम है इसका प्रोजेक्ट का, ACES नहीं, क्या है, ECL A- ECL AESL. AECS नहीं, SL क्या है, Yes, yes. हाँ यही हाँ, ये ठीक है, ठीक है। AESL हाँ, तो ये हमारा AESL प्रोजेक्ट है। ठीक है, और फिर हमने क्या किया, कुछ डेमो है इसके बारे में, डिस्क्रिप्शन और कुछ नहीं है, और हमने बोला क्रिएट अ प्रोजेक्ट। ये प्रॉपर बिट बकेट का पेड लाइसेंस वाला वो है। ठीक है, अब देखो, हायरार्की देखो, पहले मेरा प्रोजेक्ट बना है, इस प्रोजेक्ट के अंदर मेरे को अब ये बोलता है कि रिपोजिटरी बनाओ। ठीक है, तो हम यहाँ पे बोलते हैं कि अलग अलग रिपोजिटरी भी हो सकती हैं और एक भी हो सकती है हमारे पास। रिपोजिटरी में हम कोड रखते हैं, तो मान लीजिए ये रिपोजिटरी का है AESL रेपो। ठीक है, रिपोजिटरी है, और ये बाय डिफॉल्ट प्राइवेट है। प्राइवेट प्रेफर्ड होती है ताकि हमारा कोड किसी बाहर की जनता को नजर ना आए। अगर इफ यू आर मेकिंग एन ओपन सोर्स प्रोजेक्ट, तो आप इसको पब्लिक भी कर सकते हो। और उसके बाद एक रीडमी फाइल अगर आपको इंक्लूड करनी है, तो आप रीडमी फाइल इंक्लूड कर सकते हो। इसमें इसके कंटेंट आप खुद से चेंज भी कर सकते हो, सो दैट द पर्सन हु इज यूजिंग दिस रेपो शुड गेट टू नो, उसको कुछ स्पेसिफिक कुछ स्टेप्स करने हैं या कुछ उसके बारे में उसको पढ़ना जरूरी है। तो उसके बाद ये नाम पूछता है, क्या नाम देना है मेन ब्रांच को, मतलब जो डिफॉल्ट ब्रांच है उसको। अगर हम कोई नाम नहीं देंगे तो ये मेन, बाय डिफॉल्ट मेन दे देगा, अदरवाइज कुछ भी रख सकते हो आप, प्रॉड ब्रांच या वैसे नॉर्मली मेन ही रखा जाता है। उसके बाद एक फाइल होती है गिट इग्नोर, क्या आपको यहाँ पे ये रखनी है या नहीं रखनी है। गिट इग्नोर फाइल का एक मतलब ये होता है कि आपकी जो रिपोजिटरी है, जब आप उसका रेप्लिका अपने लोकल सिस्टम पे बनाते हैं, तो वहां पे जरूरी नहीं है कि आप सारी फाइल्स रखना चाहेंगे। अगर मैं बोलूं आपको, मेरे ख्याल से हम सब लोग सेल्स फोर्स के बंदे हैं, मतलब टेक्नोलॉजी हमारी,
तो Yes, yes. हाँ, तो सेल्स फोर्स का ना एक स्ट्रक्चर ऐसा होता है इसमें वीएस कोड में। तो वीएस कोड में अगर ऐसा स्ट्रक्चर होता है तो मेनली हम ये जो है ना फोर्स ऐप देन मेन उसके अंदर डिफॉल्ट, सिर्फ इसके अंदर जो भी है इसी के चेंजेस हम लोग यूज कर रहे होते हैं। तो हम नॉर्मली यही चाहते हैं कि यही वाला फोल्डर जो है फोर्स ऐप मेन डिफॉल्ट, इसी के चेंजेस को गिट वो करे, मतलब देखे कि इसमें कोई चेंज है तो ट्रैक करे, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ तो नहीं हुआ। ठीक है। बट हम लोग क्या है ना कि अगर हमने डिफॉल्ट पूरा का पूरा ले लिया तो मान लीजिए यहाँ स्क्रिप्ट्स में कोई चेंज करता हूँ मैं यहाँ पे, अगर यहाँ भी चेंज कर रहा हूँ तो मेरे को जरूरत नहीं है इसको ट्रैक करवाने की गिट से, तो मैं इसको नहीं करता। तो गिट इग्नोर की यहाँ पे फाइल में एंट्री हो जाएगी कि मेरे को सॉकल वाले फोल्डर के अंदर ये जो फाइल है मेरे को इसको ट्रैक नहीं करना है। तो गिट इग्नोर फाइल के अंदर हम बता देते हैं कि भैया कौन सी फाइल है जो मेरे को ट्रैक नहीं करनी है। तो हम बोलते हैं ठीक है गिट इग्नोर फाइल एक रख लो, अच्छी बात है। तो हमने ये रख ली, कुछ हमने कोई चेंज नहीं किया और एडवांस सेटिंग की अभी हमें जरूरत नहीं है फिलहाल। ठीक है। और हम इसको बोलते हैं क्रिएटर रिपोजिटरी। बढ़िया। अभी देखो ये हमारा रिपोजिटरी है और इसके अंदर एक गिट इग्नोर फाइल है। अगर मैं इसको क्लिक करूंगा तो मैं यहाँ बता सकता हूँ कौन कौन सी फाइल्स मुझे नहीं ट्रैक करनी गिट के द्वारा। ठीक है। जैसे यहाँ पे बोलते हैं कंपाइल्ड जावा क्लासेस फाइल्स, तो मेरे को जावा क्लास नहीं वो करवानी है तो मैंने यहाँ पे डाल दिया। अगर मुझे मान लो पाइथन की क्लासेस नहीं चाहिए तो मैं पाइथन की स्टार डॉट पी वाई पाइथन लॉग फाइल्स नहीं चाहिए तो उसकी एंट्री कर दूंगा। ऐसे ही मान लीजिए मुझे सेल्स फोर्स का कोई वो नहीं चाहिए, फोल्डर नहीं चाहिए, तो मैं उसकी एंट्रियां कर सकता हूँ। ठीक है। तो इसीलिए गिट इग्नोर फाइल होती है। अभी हमारा सबसे पहला काम जो है वो ये है कि हमको ये क्लोन करना है। ठीक है। हम सारा का सारा काम इस यूआई से कर सकते हैं, बट हमको फिर भी थोड़ा सा गिट का एक्सपोजर होना चाहिए। गिट में 4 कमांड होती हैं। ठीक है। अभी एक ये है टर्मिनल हमारा। ठीक है। ये मेरे को गिट यूज करने से पहले गिट को इंस्टॉल करना पड़ता है। ये गिट की हमारे पास मान लीजिए विंडोज का वो है लैपटॉप, तो विंडोज का लैपटॉप या मैक का लैपटॉप, इनमें में गिट इंस्टॉल करना पड़ता है। यहाँ पे डाउनलोड्स दे रखे हैं इन्होंने गिट की साइट पे। गिट हब एक साइट है, एक गिट लैब साइट है। ये सिर्फ गिट है, गिट गिट SCM। ठीक है। तो ये जो साइट है ये हमारे मतलब की है। यहाँ पे अगर आपके पास मैक है तो मैक इंस्टॉल कर लो, अदरवाइज विंडो में विंडो। ठीक है। और उसके बाद ये जब इंस्टॉल हो जाएगा, एक आपको इसमें अगर आप लोग VS कोड यूज कर रहे हो तो बाय डिफॉल्ट आपके पास जावा का वर्जन इंस्टॉल होगा लेटेस्ट। ठीक है। अगर VS कोड यूज कर रहे हो तो हाँ. हाँ ये बाय डिफॉल्ट होगा तुम्हारे पास। ठीक है। Yes, yes. तो हाँ, तो वो आपका प्रॉब्लम वहां सॉल्व ऑलरेडी हो रखा होगा। अभी हम चलते हैं यहाँ पे, पहले तो क्या काम करते हैं हम एक फोल्डर बना लेते हैं। एक मिनट। हाँ। अभी मान लीजिए मेरे को चाहिए एक नया फोल्डर यहाँ पे, और मैं उसको बोलता हूँ रेपो अंडरस्कोर डेमो। ठीक है। या रेपो ए, हाँ डेमो ही ठीक है। डेमो, क्योंकि एक्चुअल रेपो का नाम वहां पे ऑलरेडी हमने दे रखा है। ठीक है। तो हमें पहले तो क्या करना है, मान के चलिए कि आपका गिट इंस्टॉल हो रखा है। ठीक है। गिट इंस्टॉल हो रखा है, आपको पहले तो इस फोल्डर में जाना है, मान लीजिए रेपो डेमो फोल्डर में जाना है। तो मैं यहाँ पे कुछ कमांड होती हैं, चेंज डायरेक्टरी, और इसका नाम है REPO रेपो अंडरस्कोर डेमो।
ठीक है। ये सिंपल वैसे तो डॉस की कमांड है। ठीक है। तो ये अब आप इस फोल्डर के अंदर आ गए हो। ठीक है, रेपो डेमो के अंदर। ठीक है। यहाँ पे आने के बाद हमें गिट को बोलना, भाई अब तो इनिशियलाइज हो जा। ठीक है। तो GIT गिट स्पेस INIT इनिट, गिट इनिट हमने बोला। अभी इसने कुछ बोला नहीं, बस ये हो गया, गिट इनिट हो गया है। ठीक है। अब अगर मैं इसको खोल के देखूं, यहाँ पे एक्चुअली कुछ हिडन फाइल्स में वो गिट वाली जो वो होती है ना, वो आ गई होंगी। देखो यहाँ पे ये फोल्डर है और इसके बारे में ये गिट इन्फो से आया है। मतलब यहाँ पे मैंने ऐसे राइट क्लिक किया तो गिट इन्फो आ गया ना, ये इसका मतलब है कि इनिशियलाइज हो रखा है यहाँ पे इस फोल्डर के अंदर। अब मैं यहाँ पे जो भी करूंगा वो बस एक बार मेरे को यहाँ पे एक स्टेप होता है, आपको क्लोन करना होता है। GIT गिट कहाँ, कौन सी रिपोजिटरी है हमारी? हमारी रिपोजिटरी हमने यहाँ बनाई थी। कहाँ बनाई थी? यहाँ बनाई थी, AESL रेपो। ठीक है। ये गिट के मतलब गिट मतलब बिट बकेट के सर्वर पे है ये। और हमें इस अपने अपने कंप्यूटर से अपनी अपनी फाइल्स यहाँ पे भेजनी होती हैं गिट रेपोजिटरी में। अब ये भेजने से पहले हमारे पास इसका रेप्लिका अपने सिस्टम पे भी होना चाहिए, राइट? तो हम इसका एक क्लोन के लिए, आप यहाँ से ये क्लोन आपने बटन दबाया, अब ये बोलता है क्लोन के लिए ऑप्शन दिया है इसने। ठीक है। एक तो बोलता है विजुअल, एक वो है, अभी मैं दिखाऊंगा। एक क्लाइंट का मतलब सॉरी एक टूल है छोटा सा, सोर्स ट्री। सोर्स ट्री के थ्रू आप क्लोन करो, या VS कोड के साथ भी आप क्लोन कर सकते हो। अदरवाइज आप इसको गिट के कमांड लाइन से भी कर सकते हो। ठीक है। अब मैंने इसको यहां से कॉपी कर लिया। ठीक है। मैं अभी दोनों ही चीज दिखा रहा हूं, अभी मैं कमांड लाइन से दिखा रहा हूं, उसके बाद में सोर्स ट्री से भी दिखाऊंगा। ठीक है। अब मैंने यहाँ पे ऊपर से कमांड कॉपी करी हुई है, यहाँ से कमांड कॉपी कर ली मैंने और मैंने यहाँ पे चिपका दी। ठीक है। यहाँ बोल रहा है वही गिट क्लोन, उसके बाद ये URL है हमारे रेपो का। ठीक है। अब मैं एंटर करता हूँ। अब ये देखो बोल रहा है क्लोनिंग कर रहा है, पासवर्ड मांग रहा है मुझसे। तो होपफुली मैंने यहाँ पासवर्ड दिया। अच्छा इनवैलिड, अच्छा अब ये से बोल तो इनवैलिड रहा है, लेकिन ये बन गया होगा यहाँ पे, पता नहीं, देखते हैं। रेपो डेमो, अच्छा नहीं बना है। मेरा पासवर्ड क्या था? बन गया। अब पासवर्ड गायब भी हो गया। ये ऐसे करने नहीं देगा, मुझे लग नहीं रहा है। ठीक है। एनीवेज, मैं ये बताता हूँ कि जब मैंने पासवर्ड दिया तो एक फोल्डर बना वहां पे, बट पासवर्ड क्योंकि इनकरेक्ट था तो फोल्डर वापस रोल बैक हो गया। ठीक है। तो हम एक काम कर सकते हैं, हम इसको मान लीजिए इससे करते हैं, सोर्स ट्री से करते हैं। ठीक है। अरे ये अवेलेबल डाउनलोड के लिए क्यों बोल रहा है? चलो छोड़िए, मेरे पास सोर्स ट्री ऑलरेडी है। ठीक है। ये मेरा सोर्स ट्री है और मैं बोलता हूँ क्लोन फ्रॉम URL। अब यहाँ पे क्या है मेरे URL का नाम? आ, ये मेरा URL है। ओके। और मैं यहाँ पे सोर्स ट्री में मैंने सोर्स डाला, डेस्टिनेशन पाथ यहाँ पे AESL रेपो। ओके एंड नेम ये है। तो अभी मैं आपको बता दूं, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक्चुअल में मैं ये सेम काम गिट से करने की कोशिश कर रहा था। जो सर्वर पे रेपोजिटरी हमने बनाई थी उसका रेप्लिका मैं लोकल सिस्टम पे बनाने की कोशिश कर रहा था।
पासवर्ड इनवैलिड क्रेडेंशियल मेरे को बोल रहा है, मुझे याद नहीं है मेरा क्रेडेंशियल, तो मैं इसीलिए इस जिसको मैं यूज करता हूँ उसको उसी के थ्रू कर रहा हूँ। ये सोर्स ट्री भी फ्री है, हम लोग यूज कर सकते हैं इंस्टॉल करके, ठीक है, इसीलिए मैं Okay. इसको यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी मैं बोलता हूँ इसको क्लोन, मैं इसको सिर्फ क्लोन बोला है, और अभी आप ये देख लो ये क्लोन हुआ है, ठीक है। ये क्लोन हुआ है, मतलब आप इसको वेरीफाई कैसे करोगे, आप लोकल सिस्टम पे अगर जाओगे अपने, और ये एक नया बन गया होगा AESL रेपो, ठीक है, ये अभी बना है, और ये इसके मतलब इस सोर्स ट्री के थ्रू बना है, ठीक है। यहाँ पे अभी एक, तो अभी देखिए हमारा रेपो बन गया। अब हमारे पास एक टूल है जो विजुअल है, ठीक है, बट फिर भी हम लोग मान लीजिए अभी ये रेपो है, इसमें कुछ हम कोड या कोई फाइल या कुछ भी हम यहाँ पे डालेंगे। मान लीजिए मैं कुछ लेता हूँ डाउनलोड, एक ये मैंने ये उठा लिया टेस्ट क्लास, ठीक है, और मैंने यहाँ डाल दिया, कहाँ डाला, सॉरी, AESL रेपो में डाल दिया, Ctrl+V, ठीक है, डाल दिया। अब ये यहाँ पे तुरंत से इसने कैच कर लिया कि ये बोल रहा है कुछ कुछ नया फाइल आया है, ठीक है। अब मैंने मान लो एक और फाइल ऐड किया, एक और कुछ ले लो, ये ले लिया मैंने, ठीक है, और मैंने हमारा AESL था ना, हाँ, यहाँ मैंने जैसे ही डालूंगा मैं, तो इधर भी आएगा ये, देखो अपने आप यहाँ पे भी आ गया ना, ये रिव्यू भी दिखाता है, प्रीव्यू सॉरी, ठीक है। तो ये फर्स्ट स्टेप, इनिशियल स्टेप की हम बात कर रहे हैं। जब भी हम कोड की फाइल कुछ भी या स्टैटिक रिसोर्स वटेवर कुछ भी रिसोर्स हम ऐड करते हैं, तो गिट एक्चुअली गिट ट्रैक कर रहा है, गिट के ऊपर बैठा है, सोर्स ट्री हो या बिट बकेट हो, ठीक है। अब ये सेम चीज हम अपने बिट बकेट में भी देखते हैं। हमारा ये बिट बकेट था, इसको क्लोज कर दो। अभी आ, ये अगर मैं देखूं, यहाँ पे कुछ नजर नहीं आ रहा मुझे ना, कमिट्स में कुछ आ रहा है नजर, ठीक है। ये इसीलिए नहीं आ रहा है क्योंकि एक्चुअल में हमने अभी तक पुश किया नहीं है, ठीक है। तो अभी हम इसको पुश करेंगे, ये सोर्स ट्री है। मान लीजिए मुझे पहले एक्चुअल में एक बेस्ट प्रैक्टिस ही होती है कि आप बहुत सारी फाइल्स एक सिंगल गो में मत भेजिए गिट पे, मतलब बिट बकेट पे या किसी भी टूल पे, क्योंकि वो कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि आपका जो भी कमिट था उसकी इंटेंशन भी तो होगी ना कोई, आप एक छोटी सी फंक्शनैलिटी या एक बग फिक्स भेज रहे होंगे, तो उसी से रिलेटेड चीजें जानी चाहिए। मान लीजिए आपके पास बहुत सारी फाइल इकट्ठी हो रखी हैं और आपने एक ही कमिट में डाल दिया, तो इतनी सारी फाइल्स का एक ही पर्पस नहीं होता नॉर्मली, अलग अलग पर्पसेस के साथ आप भेजोगे, देन इट विल क्रिएट अ कंफ्यूजन फॉर फ्यूचर डेवलपर्स जो काम कर रहे होंगे, या आप मान लीजिए आप ही पिछले वर्जन पे आना चाहते हैं, तब प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो अब मैंने इन दोनों फाइल्स को, ये भी पेंडिंग शो कर रहा है, इन दोनों फाइल्स को मैंने ये सेलेक्ट किया, और मैंने बोला भैया कमिट करो इनको, ठीक है। कमिट जब मैंने बोला, तो यहाँ पे मैसेज डालना बहुत जरूरी है। मैसेज शुड बी लाइक दीज फाइल्स आर फॉर इनिशियल कमिट, ठीक है, डेमो। और मैंने अभी ये जो चेक बॉक्स है, इसको फालतू में कुछ अभी कुछ नहीं आपने करना है, सिंपल अपना मैसेज दीजिए और कमिट कीजिए। ये क्या बोल रहा है, ऐड कंफर्म। देखिए जब भी
आप कमिट करते हैं, कमिट का मतलब होता है कि एक इसकी फोटो खींच के या स्नैपशॉट खींच के सिस्टम को वो बता रहा है कि ये चेंजेस आए हैं। मेरे कमिट करने से सीधा ये वहां पहुंच नहीं जाएगा सर्वर पे। एक बीच में एक स्टेज है, स्टेज मतलब बीच में वो है, स्टेजिंग वो है मतलब, ठीक है। तो हम इसको स्टेज कर रहे हैं फिलहाल, और ये जो पूछ रहा है हमसे कि क्या हमें ऐड करना है, कंफर्म करूं ऐड, इसका मतलब ही है कि फोटो खींच लो भैया, ये अब हमारा मतलब स्नैपशॉट बन गया है, ठीक है। अब ये इतना तो हमने कर दिया। अब जैसे ही हमने ये यहाँ से मतलब इसको कमिट किया यानी कि स्टेज किया, तुरंत से ये पुश पे एक दिखने लग गया कि 1, ठीक है। मतलब अभी अभी हमारे पास ये कुछ बचा हुआ है कमिट एक्चुअल पुश करने को। अभी देखो आप यहाँ पे इस पे जाओगे, इस पे जाओगे, यहाँ पे अभी भी कमिट पे कुछ शो नहीं कर रहा, जबकि हमने वहां से तो कमिट का बटन दबाया। यहाँ क्यों नहीं आया? यहाँ पे इसीलिए नहीं आया क्योंकि अभी पुश करना पड़ेगा। ये आप यहाँ गए और आपने इसको, अभी फिलहाल कोई हमने ब्रांच नहीं बनाई है, सिर्फ एक ही ब्रांच है हमारी, रिमोट मेन ब्रांच। ये मेन ब्रांच में जाएगा, हमने ओके बोला, और अब ये पुश कर रहा है, ये पुश हो गया है, ठीक है। अब आप इस पे जाओ और आप एक बार पेज रिफ्रेश कर लो, कमिट्स में कुछ शो करेगा। तो हमने जो काम वहां से किया था, दीज फाइल्स आर फॉर इनिशियल कमिट डेमो, 1 मिनट पहले, वो अब यहाँ पे आ गया, ठीक है। जो हमने यहां से कमिट किया, यहां से ऐड किया, वो सब कुछ, वो सारा काम हम इस से भी कर सकते हैं। बात बस इतनी है कि मतलब आई एम नॉट एबल टू रिमेम्बर माई क्रेडेंशियल्स इसके लिए, और इसने सोर्स ट्री ने मेरे क्रेडेंशियल याद कर रखे हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं विदाउट इंटरप्टिंग द थिंग्स, ठीक है। अभी ये मान लीजिए इस तरीके से हमने डालना शुरू किया, कोड फाइल्स हमारी डलती जा रही हैं। अब हम देखें बस सोर्स को। देखो अभी ये इतनी सारी हमारी ये फाइल्स आ चुकी हैं यहाँ पे, ठीक है। अब हमें क्या करना है? अब हमें करना है, जैसे ये मान लीजिए हमारा प्रोडक्शन रेडी कोड है, मेरे को कुछ काम मिला और मुझे कहा गया कि मुझे रीड मी क्लास में, या चलो मान लो टेस्ट क्लास जो भी है, ये एक्सेल है क्या? एक्सेल में नहीं, चलो, मुझे यहाँ पे एक फोल्डर की एंट्री करनी है कि मुझे गिट इग्नोर में एक फोल्डर ऐड करना है, उसको ट्रैक ना करे गिट, ठीक है। मुझे ये काम मिला है। अब एक तरह से ये फिक्स है, ठीक है, फीचर नहीं है, फिक्स है। तो मैं एक नई ब्रांच बनाऊंगा, यहाँ ब्रांचेस में जाऊंगा और मैं यहाँ से एक क्रिएट ब्रांच का बटन दिया हुआ है यहाँ पे, मैं इसको क्लिक करूंगा और मुझे कौन सी, देखिए ये पेरेंट ब्रांच, ओरिजिनल ब्रांच, मेन, मेन में से कॉपी कर रहा हूं मैं, और मैं यहाँ बोल रहा हूँ हॉट फिक्स, हॉट फिक्स, मान लीजिए हॉट फिक्स हाइफन इसका और कुछ नाम, गेट इग्नोर, इग्नोर टास्क, ठीक है। गिट इग्नोर वाली फाइल में मुझे चेंज करने थे, मैंने ये नाम ले लिया इसका और मैंने क्रिएट बोला, ठीक है। अभी ये मेरी वो बन गई है, ठीक है, नई ब्रांच। अब मैं इसका सोर्स देखना चाहूँ, देखो मैं जो जो मेरी फाइल्स मेन फाइल में मतलब मेन ब्रांच में थी, वो सेम फाइल मेरी इधर आ गई हैं। ये यही इसी को शो कर रहा है ना, AESL रेपो, इसके अंदर मेरी ये ब्रांच है, इस ब्रांच के अंदर मेरी ये सारी फाइल्स दिखा रहा है। अगर आप इस फाइल में, अब आपको क्या करना है, अब मेरा काम था गिट इग्नोर वाली फाइल में कोई फोल्डर की एंट्री करनी है नई, ठीक है। तो मैं ये काम फटाफट करता हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अब ये जो मेरी ब्रांच है हॉट फिक्स ब्रांच, इसको मुझे वो करना है, चेकआउट करना है, बेसिकली इस पे मुझे काम करना है। तो मैं सोर्स ट्री पे जाता हूँ, सोर्स ट्री को मैं बोलता हूँ यहाँ पे ब्रांचेस का एक वो है, मेन ब्रांच है ये, ओके। मैं अब यहाँ गया, अब यहाँ पे
ये भी मुझसे पूछता है कि भाई नई ब्रांच बनानी है, पुरानी पे काम करना है, क्या करना है। ठीक है, पहली बात तो ये इसने अभी तक ये जो करंट ब्रांच मेन शो कर रहा है, अभी हमें नई ब्रांच तो बनानी नहीं है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको कर रहे हैं कैंसिल। हम जा रहे हैं 1 मिनट, यहाँ पे ओरिजिन दिख रहा है। ये ओरिजिन के अंदर मेरी ये ब्रांच जो मैंने सर्वर पे बनाई थी अभी हॉट फिक्स करके, ये यहाँ शो हो रही है। मैं इस पे डबल क्लिक किया मैंने, और ये मेरे को बोलता है अच्छा इस पे मुझे काम करना है। तो मैं इसको कर रहा हूँ चेकआउट। चेकआउट का क्या मतलब है? चेकआउट का मतलब है कि लोकल एक, मतलब हमारे कंप्यूटर पे एक सिस्टम, मतलब एक ब्रांच को चेकआउट कर ले, ताकि हम उस पे लोकल कॉपी पे काम करें। बाद में जब हमारा काम हो जाए तो हम इसको उठा के वापस से कमिट करें अपनी वाली ब्रांच में, ये इस वाली ब्रांच में। ठीक है, तो मैंने इसको चेकआउट किया, इसने चेकआउट कर दिया मेरा। और अब आप इधर देखोगे, यहाँ ब्रांच के अंडर ये पहले मेन जो था, मेन से पहले था ये 0, अब ये हॉट फिक्स के आगे आ गया है 0। 0 मतलब ये कुछ नहीं है, अपने आप को हाईलाइट करने के लिए। ठीक है, तो ये मैं लोकल सिस्टम पे हॉट फिक्स वाली गिट इग्नोर वाली ब्रांच पे काम कर रहा हूँ। ठीक है, अब मेरे को इसी के दौरान हम लोग वो देख पाएंगे कि हमें मर्ज की कॉन्फ्लिक्ट आएंगे, वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो मैं इधर ये मैंने किया। अब मेरे को यहाँ पे बाहर निकलूं अगर मैं इससे, ओके, AESL रेपो और डेमो रेपो बना कहाँ है, रुको। यहाँ पे इनिशियल कमिट और दीज फाइल्स यहाँ तक ही शो कर रहा है। ओके, शो इन फाइंडर ये आया हुआ है। ठीक है, गिट इग्नोर फाइल लेकिन इसमें शो नहीं हो रही है। गिट इग्नोर क्यों नहीं हो रही है? अच्छा, चलो, गिट इग्नोर वैसे एक गिट की सिस्टम फाइल है। मुझे समझ नहीं आ रहा है फिलहाल कि ये हिडन क्यों है, बट बिना गिट की फाइल के ये सिस्टम वर्क नहीं कर रहा होता। फॉर द टाइम बिंग मैं जो ये रीड मी फाइल है इसको ले सकते हैं हम लोग, ताकि हम एटलीस्ट सैंपल देख सके कि काम कैसे करता है ये। ठीक है, तो मैं इसको ओपन करता हूँ। विजुअल स्टूडियो कोड से मैंने ओपन कर लिया और मैं बोलता हूँ इसको हाँ ओपन। ठीक है, अभी ये मेरी फाइल है लोकल सिस्टम पे, और मैं इसमें मान लीजिए यहाँ पे मैं डालता हूँ कि दिस इज द चेंज फॉर डेमो। ठीक है, ऐसा मैंने डाल के छोड़ा इसको और मैंने सेव कर दिया इसको। अब अब मैं गया इधर सोर्स ट्री पे। अभी जैसे ही मैंने कुछ चेंज किया उस फाइल में, तो इसने मेरे को तुरंत बोल दिया कि अनकमिटेड चेंजेस हैं मेरे यहाँ पे, अनकमिटेड चेंजेस। ठीक है, बाकी कुछ नहीं पता। 3:44 पे हुआ है ये, सेम टाइम 3:44 पे हुआ है। ठीक है, तो मैंने ये फाइल ये किया। अब एक्चुअली मुझे एक और यूजर चाहिए जो इसी सेम फाइल पे कहीं दूसरी जगह से कमिट करे। अनफॉर्चुनेटली मेरे पास सिर्फ एक ही यूजर है, तो बट ठीक है। अब मैं ये अनकमिटेड चेंजेस में जो ये मैंने नई लाइन ऐड की थी, दिस इज द चेंज फॉर डेमो, ये मेरे को सोर्स ट्री दिखा रहा है ऑलरेडी कि भैया ये वाली लाइन ऐड हुई है। मान लो मैं इसी फाइल में एक लाइन डिलीट करता हूँ, मतलब कुछ अच्छा खासा पोर्शन डिलीट कर देता हूँ यहाँ से लेके और पूरा यहाँ तक 6 तक मैं डिलीट कर देता हूँ और मैं करता हूँ सेव। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे जब देखूंगा ना,
तो मेरे को इधर क्या शो कर रहा है, मैंने एक लाइन ऐड करी है, ये प्लस 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 दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है। और मैंने इतना पोर्शन डिलीट किया था, रेड में शो कर रहा है माइनस माइनस माइनस, मतलब ये मैंने उड़ा दिया, डिलीट कर दिया। और ये फाइल कौन सी है, ये रीड मी फाइल के अंदर चेंजेस हुए हैं, ये दो दो, ठीक है। अब मान लो ये यहां से लेके यहां तक इतना जो पोर्शन है, ये किसी दूसरे डेवलपर ने इसमें चेंज किया है, ठीक है, और वो भी इसी फाइल को कमिट करता है। तो उस टाइम पे हमको कोई प्रॉब्लम यानी मर्ज का कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा, ये इजीली मर्ज हो जाएगी, क्योंकि ये लाइन नंबर ये सेपरेट है और ये सेपरेट है, ठीक है। लेकिन अगर मैंने तो कर दिया ये डिलीट, और नहीं डिलीट नहीं, मैं एक ना मॉडिफाई भी करता हूँ, रुको, ये भी हमारा हो जाएगा। दिस चेंज इज फॉर डेमो के नेक्स्ट वाली लाइन, दिस चेंज इज फॉर डेमो के बाद ये वाली लाइन, ठीक है। अब यहाँ पे मैं ऐसा दिखाता हूं कि ऐसे मैंने कुछ ये लाइन डाल दिया, ठीक है, और मैंने सेव किया, ये चेंज है, ये मैंने ना तो डिलीट किया है ना ऐड किया है, चेंज किया है मैंने। और अब मैं जाता हूं इधर, ठीक है, तो ये मेरे को क्या क्या दिखा रहा है, ये एक्स एक्स एक्स, ये दिखा रहा है लाइन नंबर 4, उसके बाद लाइन नंबर 5, उसके बाद ना कोई लाइन नंबर नहीं है, सीधा 6 दिखा रहा है फिर उसके बाद। तो यहाँ कोई लाइन नंबर नहीं है, फिर 6 दिखा रहा है, मतलब यहाँ पे यहाँ पे पहले कुछ और टेक्स्ट था, इसके बाद कुछ मॉडिफिकेशन हुई और फिर ये टेक्स्ट हो गया, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे कोई लाइन नंबर शो नहीं हो रहा, अगली लाइन पे दिखा रहा है मुझे, ठीक है, इस तरह से। बट मैं इस चेंज के साथ कमिट कर दूं, और मान लो अभिषेक ने कमिट किया और उसने बोला कि ये यहां से लेके यहां तक ये जो पार्ट है, यहाँ पे उसने इसको एक ब्रैकेट में डाल दिया, या मान लो इसने वाई 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 कर दिया, ठीक है। अब क्योंकि ये एक्स 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 और वाई 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 ये दोनों लाइन नंबर 6 पे ही हैं, उस टाइम पे डेफिनेटली कॉन्फ्लिक्ट आएगा उसको मर्ज करते टाइम, जब हमारे चेंजेस अलग अलग हैं बट एक ही लाइन नंबर पे हैं। ये दिस इज द यूज केस वेयर द कॉन्फ्लिक्ट इज गोइंग टू कम, ठीक है। अब अगर मैं देखूं तो यही सेम सैंपल है, यूज हो रहा है, यहाँ पे ये इधर दिखा रहा है मेरा एक्स 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 के साथ और ये वाई 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 के साथ। बट ये क्योंकि मैं सेम यूजर हूं, मैंने ही ये चेंज किया है वाई वाई वाला भी। अगर मेरे पास एक एक्स्ट्रा लाइसेंस होता तो मैं ये दिखा सकता हूं कि वाई 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 अगर अभिषेक करे और ये एक्स एक्सेस मैं करूं तो ये कॉन्फ्लिक्ट देगा। कुछ क्लैरिटी आ रही है क्या टीम? Yes, yes. यस। ठीक है जी, ठीक है, Awesome. ओके। Yeah. तो ये इस तरह से है। अभी मेरे पास सिंगल यूजर है, ये मेरी लिमिटेशन है, सॉरी दोस्तों। लेकिन अब मैं इसको बोलता हूँ कमिट, ये वाली फाइल है मेरी, मैं इसको बोलता हूँ कमिट। कमिट का मतलब मैंने बताया था स्टार्टिंग में, इट इज जस्ट अ स्टेजिंग, एक फोटो खींच के सर्वर को हम दे रहे हैं कि ये वर्जन था हमारा चेंज का, ठीक है। अगर मान लीजिए अभिषेक चेंज करता है इसमें, तो मेरे वर्जन के बाद एक और वर्जन होगा जो अभिषेक ने किया होगा, और वो टाइम स्टैम्प के साथ होता है, मैं अभी दिखाऊंगा आपको, ठीक है। तो ये आ, हम लोग देते हैं चेंज, नहीं एक्चुअली मर्ज कॉन्फ्लिक्ट के लिए बोलना चाहिए था, मर्ज कॉन्फ्लिक्ट सैंपल, ठीक है। ऐसा स्पेलिंग गलत होगी, कोई बात नहीं, ओके, ठीक है। और मैं इसको सीधा ओके बोल देता हूं। तो अब देखो, ये इधर से हमारा सिर्फ अभी कमिट हुआ है, मतलब फोटो खींच ली हमने इसकी, ठीक है। अब मर्ज कॉन्फ्लिक्ट सैंपल, अब मेरे को ये एक्चुअल में सर्वर पे पुश भी करना है। यहाँ पे अभी तक हमारे पास अगर मैं इसके कमिट्स देखूं इस ब्रांच के, तो ये अच्छा, ये तो ये है ब्रांच, कौन सी है मेरी यार, ऑल ब्रांचेस का नहीं शो करना है मेरे को, खाली हॉट फिक्स का देखना है। हॉट फिक्स पे मेरा पिछला कमिट आया है, अभी जो मैंने कमिट किया नहीं आया है, वो इसीलिए नहीं आया क्योंकि पुश नहीं किया है। यहाँ पे मैं गया, ये मैंने पुश
उठाया, और अब देखो ये ब्रांच कौन सी है, यहाँ पे मेन भी सिलेक्ट कर सकता हूँ जो मुझे नहीं करनी है। मेन कब होगी, जब मैं एक्चुअल में अपना कोड रिव्यू करवाने के बाद मेन में जाना चाहिए, पहले नहीं। ठीक है, तो मैंने इसको अपनी हॉटफिक्स ब्रांच में ही मैं कर रहा हूं, और मैंने ओके बोल दिया। ये हो गया। अब यहाँ जाते हैं। अभी यहाँ पे वो दिख नहीं रहा, एक बार मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, आएगा। हाँ ठीक है। तो अभी देखो, ये यहाँ पे अलग से ही हमें बता रहा है कि हॉट फिक्स गिट इग्नोर वाला काम है ये। ठीक है, ये हमने जो मैसेज डाला था, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बिना कुछ नहीं है। ठीक है, अब ये पुश हो गया यहाँ पे। मान लीजिए अभिषेक का टेक्निकल लीड कोमल है। ठीक है, तो अब ये अभिषेक क्या करेंगे, अभिषेक जाएंगे पुल रिक्वेस्ट बनाएंगे इसके लिए। और इनको क्या करना है पुल रिक्वेस्ट के लिए, यहाँ पे एक बटन दे रखा है पुल रिक्वेस्ट। पुल रिक्वेस्ट का मतलब क्या है, पहले तो मैंने देखिए स्टार्टिंग से गिट ये ना ये एक डॉक्यूमेंटेशन भी है इसमें, इस पे। और ये गिट के बारे में है। ये वर्जन कंट्रोल और ये जो कुछ भी है, ये एटलासियन कंपनी है, इस एटलासियन कंपनी का प्रोडक्ट है बिट बकेट। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे इन्होंने बोला है लर्न गिट, उसके बाद फिर उन्होंने बोला है कि बिगिनर के लिए क्या क्या होता है, गिट की कमांड्स और गिट इंस्टॉल और क्या क्या। फिर गेटिंग स्टार्टेड में ये बताता है हमें ये कमांड के बारे में, गिट इनिट, गिट क्लोन, गिट कॉन्फिग, गिट एलियास, कमिट, डिफ, स्टैश, पता नहीं क्या क्या। इतनी सारी चीजें यूज नहीं होती हैं, बट डेली रूटीन में इतने ये जो जो कमांड हैं जो हवा बना देते हैं हमारे लिए, उसकी हमें कोई जरूरत नहीं है। हमें जो सोर्स फ्री है टूल जो हम अभी तक यूज कर रहे थे, ये वाला, ये फ्री है, और ये आता भी उसके थ्रू ही है, तुम्हारे इसके क्या नाम है इसका, बिट बकेट में ना। मतलब एटलासियन जब अब तुम क्लोन करने के लिए बोलोगे तो एक ऑप्शन देता है, वीएस कोड और सोर्स फ्री दोनों का ऑप्शन देता है। अगर मैं इस पे जाऊं और मैं बोलूं इसको क्लोन, यहाँ पे क्लोन बोलूं, तो देखो ये सोर्स ट्री इज अ फ्री गिट क्लाइंट, वीएस कोड भी है, इज अ फ्री सोर्स एडिटर, है ना। तो दोनों फ्री हैं हमारी। तो हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं कि हम सोर्स ट्री को इंस्टॉल कर लेंगे, और विजुअली हम लोग देख पाएंगे, अच्छा अच्छा ये ऐसे से करना है। गिट की कमांड याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब हम इधर ही आ गए, हमने ये कमिट किया था, पुश भी कर दिया, और हमारा यहाँ पे आ गया था, किधर आया था पता नहीं, अच्छा हाँ, इधर आ गया था। अगर हम कमिट देखने वाले थे, ये यहाँ आ गया था। अब इस ब्रांच पे, यहाँ पे अभिषेक ने बनानी थी पुल रिक्वेस्ट, भाई उसने काम तो कर दिया, अब वो बिना रिव्यू के सीधा मेन ब्रांच में डालेगा, देन इट इज अ बैड प्रैक्टिस। हो सकता है स्टेबल कोड भी खराब हो जाए। तो टाइटल है, ठीक है, जो भी टाइटल है, यहाँ पे @ भी हम बता सकते हैं कौन है। मतलब अच्छा मेरा तो एक ही है, तो मेरा अपना ही नाम आ रहा है, किसी और कोई और यूजर होता उसका भी नाम आ जाता, और प्लीज रिव्यू। ठीक है, ऐसा करके। अच्छा यहाँ ऑप्शन है कि डिलीट करना है क्या इसको, ये होने के बाद, मर्ज होने के बाद, मर्जी है, बाद में मैनुअली भी डिलीट कर सकते हो। और जब ये पुल रिक्वेस्ट बना रहा है, उस टाइम पे देखो मैं रिव्यू करने वाला हूं, तो मुझे ये सब कुछ दिख रहा है फाइल में क्या चेंजेस हुए हैं। यहाँ पे इसने ये चीज ऐड की है, प्लस साइन दिखा रहा है, ये भी ऐड हुई है लाइन प्लस साइन, लेकिन इससे पहले माइनस साइन। ये एक ही लाइन पे अलग अलग दो चेंज थे, मैं आपको शो करना चाहता था कि एक ही लाइन पे हुए हैं, बट यहाँ पे क्यों ये प्लस साइन दिखा रहा है, क्योंकि किसी दूसरे यूजर के द्वारा मैं सोच रहा था करके दिखाऊं ये वाला, अदरवाइज ये कॉन्फ्लिक्ट भी देता। ठीक है, बट एनीवेज, ठीक है। और ये पार्ट हमने डिलीट किया था, ये सारा माइनस साइन दिखा रहा है। अब एज अ रिव्यूअर अब देखते हैं क्या होता है। ठीक है, मैंने बोला क्रिएट
पुल रिक्वेस्ट। अब देखो, ये पुल रिक्वेस्ट मैंने बनाई, और ये जब मैं इसको अप्रूव कर सकता हूं, और फिर अप्रूव करूंगा, फिर मैं मर्ज करूंगा। ठीक है। ये हॉट फिक्स ब्रांच थी जो हमने बनाई थी एक पर्टिकुलर फिक्स करने के लिए। अगर ये मैंने अप्रूव कर दिया तो ये यहां से मेन ब्रांच में जाएगा। ठीक है। मैंने देखा, सारा कोड देखा, ओके लगा मुझे, मैंने कर दिया, दिस इज फाइन। ठीक है। और हालांकि मैं इसको ऐड कमेंट नाउ, मैंने कमेंट ऐड कर दिया। अब फिलहाल तक ये ओपन है, पीआर मतलब पुल रिक्वेस्ट ओपन है। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं इसको स्टार्ट रिव्यू करता हूं। इसके यहाँ पे मैं वो दे सकता हूं कि भाई ओहो, जैसे यहाँ पे मैं बोलता हूं कमेंट, कि मैं अपना कोड रिव्यू कमेंट दे रहा हूं, दिस इज नॉट डन प्रॉपरली। ठीक है। ये फॉर डेवलपर है। ठीक है। और मैंने बोला, ये मैंने कमेंट ऐड कर दिया यहाँ पे। ठीक है। इस तरह से सैंपल है टेक्निकल लीड्स के लिए कि वो कोड रिव्यू करें इसका। और फिर होने के बाद मेरे को लगा अब ठीक है, और मैंने उसको ये मैसेज जाता है उसके पास, जिस बंदे ने पीआर बनाई है उसके पास मैसेज जाता है, वो वहां से फिर वापस सबमिट करता है। फिर फाइनली मुझे लगता है अच्छा ठीक है, जो मैंने बोला था इसने कर दिया। अब मैं बोलता हूँ ओके, अप्रूव। ये अप्रूव हो गया। अब जो जो इस पीआर का रिव्यूअर है उसने अप्रूव कर दिया, अब वही बंदा मर्ज करेगा। ठीक है। ये एक बेस्ट प्रैक्टिस है, सीनियर लेवल का बंदा मर्ज करे। ये दिखा रहा है सोर्स हॉटफिक्स गिट इग्नोर वाली, और ये है मेरी डेस्टिनेशन ब्रांच यानी मेन ब्रांच जिसमें ये कोड जाएगा। अब मर्ज ये जो भी है, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ इसको मर्ज करने के लिए बोल रहा हूँ, लेकिन मैं इसको ये नहीं बोल रहा कि क्लोज सोर्स ब्रांच, मैं क्लोज नहीं करवा रहा इसको, ब्रांच मैं बंद नहीं करवा रहा। ठीक है। अच्छा, और मैं बोलता हूँ मर्ज। ठीक है। तो ये मर्ज हो गया, ये दिखा रहा है मर्ज्ड। अब हम इसका कमिट्स पे जाते हैं। अभी देखो जादू, पहले ये मेन ब्रांच अकेली थी। एक काम करो ना, ऑल ब्रांचेस शो कर रहा है, बिल्कुल सही है। ये हिस्ट्री दिखा रहा है, हम जो कह रहे थे ना वर्जन कंट्रोल सिस्टम, वर्जन कंट्रोल सिस्टम। अब ये देखो, ये है, ये वर्जन है कमिट का। 36 मिनट पहले ये स्टेट था इसका। ठीक है। और उसके बाद 22 मिनट पहले एक और कमिट हुआ, ये वाला, दीज फाइल्स आर इनिशियल, ये जो भी है। फिर 8 मिनट पहले कुछ और मर्ज कॉन्फ्लिक्ट सैंपल के तौर पे फाइल में बदलाव हुए। फिर अभी 43 सेकेंड्स पहले हमने मर्ज किया है कुछ, तो ये पहले शो कर रहा है, पहले एक कमिट फिर दूसरा कमिट। अब जब ये हमने मर्ज कॉन्फ्लिक्ट के लिए फाइल सबमिट करी थी, वो डिफरेंट थी, वो हॉटफिक्स वाली ब्रांच थी, और ये जो सीधी जा रही है ये मेन ब्रांच थी। तो दोनों दोनों का कंटेंट यानी कि दोनों का जो सोर्स कोड है वो अलग अलग था। फाइनली हमने ये जो रेड वाली जो जा रही है ये हॉटफिक्स वाली ब्रांच हमने मेन ब्रांच के अंदर मर्ज करी है। अगर ये साफ साफ दिख रहा हो सबको, मर्ज करते ही अब ये दोनों मर्ज हो गए, मतलब इसमें सेम स्टेट है मेन ब्रांच का, और यही सेम स्टेट है इस वाली ब्रांच का, यहाँ इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। अगर इन दोनों को देखना है तो आप इस पे क्लिक करो कमिट पे। ठीक है। इसमें दिखा रहा है ये इतना सारा चेंज, लेकिन मैं एक स्टेप बैक जाऊं और इस पे क्लिक करूं, यानी कि इस पे, तो अब देखो वैसे तो सेम ही शो कर रहा है, लेकिन वो इसीलिए शो कर रहा है क्योंकि मैं बंदा तो वही हूँ, मतलब मेरा यूजर नेम जो है वो वही है। अगर ये बंदा कोई दूसरा होता तो उसको थोड़ा, जिसने ये कमिट किया है उसके लिए थोड़ा सा डिफरेंट होता। बट इसी को बोलते हैं स्नैपशॉट, इसी को बोलते हैं कि वर्जन। ये जितने कमिट्स थे सारे वर्जन हैं। अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो, इसमें क्लिक करूं तो देखो ये दिखा रहा है कि यहाँ पे ये ऐड हुआ था और कुछ नहीं ऐड हुआ था।
जो जो चेंजेस हमारे आए 400 हो गए। चलो, तो अभी हमने एक बार रिकैप दे देता हूँ। रिकैप ये है कि हमने गिट पे, गिट कहाँ है, ये रहा गिट, ठीक है। हमने गिट पे सबसे पहले एक प्रोजेक्ट बनाया। एक मिनट, तो पुल रिक्वेस्ट ये सब कुछ शो करता है वैसे यहाँ पे इसको आप ना जीरा से भी इंटीग्रेट कर सकते हो। जीरा में आप इशू बनाते हो यूजर स्टोरी के, या कुछ भी आप काम कर रहे हो, इसको इंटीग्रेट कर दोगे, जो जैसे पुल रिक्वेस्ट मर्ज हुई तुम्हारी टिकट में एंट्री हो जाएगी। खैर ये लेटर ऑन का पार्ट है। तो आप यहाँ पे प्रोजेक्ट बनाते हो सबसे पहले। प्रोजेक्ट के अंदर फिर आप ये डेमो, मतलब सॉरी, ये रेपो बनाते हो। रेपो बनाने के बाद आप इसमें आपको कुछ सोर्स कोड भी चाहिए। वो सोर्स कोड आप कमिट्स के थ्रू करते हो। कमिट्स से आप पहले तो सारा सोर्स कोड मेन ब्रांच में डलता है। उसके बाद आपको अगर कुछ काम दिया जाता है, अगर फीचर बनाना है और कोई फंक्शनैलिटी नई बनानी है, तो आप फीचर ब्रांच, फीचर मतलब यूज कर सकते हो वर्ड अपनी ब्रांच बनाने के लिए। अदरवाइज वो कोई हॉट फिक्स हो सकती है, यानी कि बग फिक्सिंग के लिए ये ब्रांच। उसके बाद ब्रांच बनाने के बाद हम ब्रांच में से कमिट करते हैं। वो कमिट उसी ब्रांच में होता है, मेन ब्रांच में नहीं। मेन ब्रांच में करने के लिए हम क्या करते हैं, बाद में पुल रिक्वेस्ट बनाते हैं। पुल रिक्वेस्ट को कोई कुछ बोल रहा था, हम लोग आई थिंक वी आर No, रनिंग आउट ऑफ टाइम। no, no. ओके ओके, You can continue. श्योर श्योर, अगर 5-10 मिनट हम लोग कर सकते हैं डिवोट तो ठीक है। तो हम फिर क्या करते हैं, पुल रिक्वेस्ट बनाते हैं। पुल रिक्वेस्ट में हमारे से सीनियर बंदा हमारा जो कुछ भी हमने कमिट किया है उसको रिव्यू करता है। रिव्यू कराने के बाद वो मर्ज कर देता है। ये जो पार्ट है, सोर्स, कमिट, ब्रांच, पुल रिक्वेस्ट, यहां तक का पार्ट है सी आई। सी आई मतलब कॉन्टिन्यूअस इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट? इंटीग्रेशन ऑफ योर कोड, योर रिसोर्सेज, योर स्टैटिक रिसोर्सेज, वट एवर, ठीक है। उसके बाद ये चीजें जो है ना, ये डिप्लॉयमेंट से रिलेटेड है। पाइपलाइंस, डिप्लॉयमेंट्स, जीरा इश्यूज एक इंटीग्रेशन है। आप अपने जो भी आप प्रोजेक्ट रनिंग के लिए यूज करते हो वहां उसके साथ। बाकी सब तो सिक्योरिटी है, तो मेरे को पता भी नहीं है सिक्योरिटी कैसे हैंडल करते हैं, ठीक है। तो ये सीआई का पार्ट है जो अभी हमने कवर किया है। और इस इसको करने के लिए हमको एक टूल की जरूरत होती है। आइदर दैट कैन बी गिट, जो कमांड लाइन है। अब थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसीलिए हम, मतलब मेरा पर्सनल चॉइस ये है कि मैं ये ना ही करूं। कंफ्यूजन होता है। तो मैं बोलता हूँ कि सोर्स ट्री ज्यादा बेहतर है, गिट का कमांड लाइन यूज करने से बेहतर है। हम इसको क्या क्या हमारा स्टेप होते हैं इसमें, इसमें स्टेप ये होता है कि जब भी आप कोई चेंज करते हैं या ऐड करते हैं या इवन डिलीट भी करते हैं, लास्ट एक सैंपल दिखा देता हूं। मैं टेस्ट क्लास को मैं डिलीट करता हूं यहां से, इसको मूव टू बिन, ठीक है। मैंने डिलीट किया है ये। अभी मैं स्टेटस पे देखो, एकदम से जैसे ही वहां से डिलीट किया, यहाँ ये आ गया माइनस साइन के साथ, मतलब ये टेस्ट क्लास फाइल जो है ये डिलीट हुई है। अब क्या ही मेरे से गलती से डिलीट हुई या मैंने इंटेंशनली डिलीट किया, ठीक है। तो इंटेंशनली किया है मैंने। मैंने इसको बोला कि ठीक है मैं अब इसको कमिट करूंगा। मैंने ये सेलेक्ट कर दिया और मैंने बोला दिस फाइल इज नॉट नॉट इन यूज, ऐसा ही कुछ, ठीक है। और मैंने बोला कि ओके कमिट करो इसको। अब जैसे ही मैंने कोई नई फाइल डाली थी, उस टाइम पे ये मुझसे पूछता था ऐड, मतलब कंफर्म ऐड। अभी मैंने ये एक्चुअल में फाइल डिलीट की है और मैं कमिट कर रहा हूं, तो अब ये मेरे से बोलता है कि कंफर्म रिमूव। मतलब इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता है। अब मैं बोलता हूँ कि हाँ ये मेरे से गलती से हुई है या इंटेंशनली कर रहा था। मैं तो इंटेंशनली कर रहा था, तो मैं इसको बोलता हूँ ओके। अब ये सच में यहां से हो गई डिलीट और ये कमिट भी हो गई। इस कमिट हुई है, डिलीट हुई है, बट ये सर्वर को पता नहीं है अभी तक। ये फाइल सर्वर पे अभी भी पड़ी होगी। अगर आप देखोगे, अरे यार ये वाला है, हाँ। अगर आप ये देखोगे
मेन ब्रांच, मेन ब्रांच ही है, ठीक है। अभी यहाँ पे ब्रांचेस, सोर्स नहीं, कमिट्स, कुछ कमिट हुआ नहीं अभी तक यहाँ, ठीक है। अब आप यहाँ पे जाओ इस पे, और अब इसको पुश कर दो, ठीक है। अब ये हॉट फिक्स वाली ब्रांच है, यहीं पे मैंने किया चेंज, और मैं इसको बोलता हूँ ओके। ये फाइल डिलीट करी है मैंने। अभी ये पता है, बहुत सेफ तरीका है, मैंने डिलीट कर दी। अब डिलीट होने के बाद मैंने यहाँ पे मैं देखूं तो ये ब्रांच मेरी हॉट फिक्स वाली है, फीचर ब्रांच, ये वाली फीचर नहीं यार, ये तो हॉट फिक्स वाली ब्रांच थी, कहाँ गई? रुको, मैं एक मिनट, हाँ ये वाली थी ना मेरे को, देख किसी और में रहा हूं मैं। हाँ देखो, ये मेरा ये है, इसके कमिट्स देखो आप, देखो मैंने बोला दिस फाइल इज नॉट इन यूज, ठीक है, ये मैंने अभी अभी कमिट किया है। अच्छा, और एक ये मैंने जो किया है, ये इसका स्टेट दूसरा है और इसका स्टेट दूसरा है, ठीक है। ये हॉटफिक्स वाली ब्रांच है जिसपे मैं अभी डिलीट किया है, और ये जो है ये मेन और पिछली हॉटफिक्स वाली ब्रांच, इन दोनों का स्टेटस ये था। इन दोनों में डिफरेंस है, इसीलिए ये एक लाइन में नहीं है। अभी जो हमने डिलीट किया है, सॉरी मैं थोड़ा टाइम ले रहा हूँ, बट इसके बिना ना होगा नहीं, फिर ट्रेनिंग का मतलब नहीं है कुछ। तो अब ये मैंने किया, अब मुझे ये सर्वर पे सिर्फ कमिट हुआ है, मतलब एक स्नैपशॉट आया है, एक्चुअल में सर्वर से डिलीट नहीं हुई है। इट इज सो सेफ। अब मैं बोलूंगा पुल रिक्वेस्ट बनाऊंगा, और मैं बोलूंगा भैया ये मैंने क्रिएट अ पुल रिक्वेस्ट। अब देखो जैसे मैंने पुल रिक्वेस्ट बोला, इसने पिक कर लिया कि ये डिलीट हुआ है, डिलीट, एक मिनट, ये डिलीट हुआ है, माइनस दिख रहा है ना यहाँ पे, ये रिमूव्ड फाइल है, देखो आपने अभी दिखा भी रहा है रिमूव्ड फाइल, ठीक है। तो अब मैं बोलता हूं कि दिस इज रिमूव्ड, ठीक है, दिस इज रिमूव्ड, और मैंने इसको बोल दिया क्रिएट अ पुल रिक्वेस्ट। अभी तक भी कुछ नहीं हुआ है। अब अब क्या, अब जो मेरा मतलब मेरा लीड है जो, वो मेरा लीड देखेगा, और वो बोलेगा अच्छा भाई मेरे पास तो एक पुल रिक्वेस्ट आई हुई है, पुल रिक्वेस्ट आई है, तो वो जाएगा पुल रिक्वेस्ट पे, और ये देखेगा दिस फाइल इज नॉट इन यूज, ये मेरे पास आई हुई है, वो इस पे क्लिक करेगा, और उसके बाद वो देखेगा अच्छा ये डिलीट हुई है, और वो बोलेगा ठीक है, ओके, परमिटेड, ठीक है। ये स्टार्ट रिव्यू हमने पहले करके देखा था, इसीलिए मैं इसको नहीं कर रहा हूँ। और ये करने के बाद ये एक कमेंट ऐड कर दिया इस बंदे ने, और बोला कि ठीक है अप्रूव कर रहा हूँ मैं इसको, मेरे को नहीं चाहिए फाइल, ठीक है। ये अप्रूव कर दिया, और मैं बोल रहा हूँ ठीक है मर्ज। अब जब ये मर्ज, एक मिनट, हाँ ठीक है, अब मैं बोलता हूँ मर्ज, ओके मर्ज, मर्ज इज इन प्रोग्रेस, अब ये मर्ज हो गया, ठीक है। अब रीलोड पेज, ठीक है, रीलोड कर लो। अब देखना आप कमिट्स पे जाके, ये ऑल ब्रांचेस में पहले यहाँ पे याद होगा आपको, ये इसका और इसका दोनों के हेड अलग अलग थे, अब सभी के हेड एक हो गए हैं। मतलब इस वक्त सिस्टम में कोई भी ऐसी ब्रांच नहीं है जिसमें मतलब वो अपनी ही दिशा में जा रही है, ऐसा नहीं है। सब में एक ही स्टैंडर्ड एकदम क्या होता है वो, सेम कोड है सब में, यूनिफॉर्म, ठीक है। तो दिस वाज समथिंग दैट आई इंटेंडेड टू शो। अभी मैं एक तो ये जो है गिट के बारे में कोई पढ़ना चाहे थोड़ा, ये अगर आप ये पढ़ोगे तो आपको कुछ भी चाहे वो विजुअल हो चाहे कुछ भी हो, आपको उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी, मतलब कॉन्सेप्ट में। तो ये ज्यादा जरूरी है वैसे ये पढ़ना इसका। एक तो डॉक्यूमेंटेशन पढ़ ले, रेफरेंस तो कमांड्स के लिए होता है, आप कोई भी कमांड आपने देखनी है, ठीक है, मर्ज है जैसे, ये मर्ज है, पीआर मर्ज करते हैं हम लोग, ये कमांड है, कमांड के थ्रू भी आप कर सकते हो।
बट ब्लैक स्क्रीन व्हाइट स्क्रीन पे करना थोड़ा डिफिकल्ट है। दूसरा, आप इस पे पूरा कंप्लीट वो पढ़ सकते हो। गेटिंग स्टार्टेड तो खैर गिट के बारे में ही है। कोलैबोरेटिंग वर्कफ्लोज, भाई कैसे आपने वो करना है, ब्रांचिंग है या मर्ज हम कर रहे हैं, उनके कॉन्सेप्ट्स वो सब कुछ इसमें दे रखा है। मर्ज कॉन्फ्लिक्ट जैसे आएंगे उनके बारे में। तो यही है ओवरऑल। बाकी Atlassian अपने आप में बहुत बड़ा प्रोडक्ट है। आप कुछ भी अब क्या है ना कि स्लाइड का लास्ट पेज, लास्ट वो प्रेजेंटेशन का लास्ट स्लाइड आ गया अब एक तरह से। कोई भी क्वेश्चन कुछ भी आप पूछना चाहें आप पूछ सकते हैं। अभी तो मेरे तो नहीं है, बट अब जैसे आपने बताया तो उसके अकॉर्डिंग इसको यूज करके देखेंगे, अगर कुछ होगा तो हम आपसे इसके बाद, ठीक है, ठीक है ना। हाँ ठीक है, thank you Purushottam, thank you team. If you have any questions later on also you can send us the mail. तो मैं पुरुषोत्तम से वो मेल फॉरवर्ड करके I'll get the answers if there is anything that you want to ask. Okay. ओके ओके, अब यूज करेंगे उसके बाद जो भी होगा जी जी नहीं हाँ समझ जी। में आया तो we can. Sure. Yeah, and I'll be welcoming any feedbacks if you want to give, right? So maybe not if you not in this forum, maybe you can write back to Sandeep, right? Sure. Yeah, sure. Okay. No, it's good. Yeah, Very helpful. yeah, sure. Thank you. Okay. Thank you everyone. Bye. Thank you. Thank you, Prashant. Thank you, Sandeep. Bye. Thank you. Bye bye. Bye.